Hello everyone, myself Archana Palandurkar. Again, I am here to meet you, to give you a new lecture based on chapter 5 topic water contamination. So, before this video, I have posted I have posted two video based on this chapter water security, and this is the third video. This is very I think thoda lamba hoga video, big video, because all the topics are known topic as well as content is very high as compared to the other videos. So water contamination, as we know, water contamination or contamination of water is nothing but the water pollution. So we have all ideas related to that. Water pollution is the favorite topic of the student. Whenever I taught this subject in the classroom, students are very excited to listen because all the examples or the sources are seen sources or nearby sources. That's why students are very interested to study this topic. So let's start the water contamination. First, in that water contamination is deterioration of water quality. Deterioration means खराब होना. उसको क्या बोलते हैं कि खराब होने से भी ज़्यादा क्वालिटी उसकी नीचे आना, उसके स्टैंडर्ड्स नीचे आना, that is deterioration of water. As we know, we need water in every phase, for industrial purposes, for domestic purposes, for agricultural purposes. Everyone needed the water every time, and that's why what happened, everyone wants water in a more quantity or more number, and that's why water is polluted day by day, knowingly or unknowingly. Not necessary every time we are involved in the water pollution. Sometimes it is unknowingly we are polluting the water, sometimes knowingly we are polluting the water. So because of the rapid industrialization, because of the population growth, because of the high industrialization, the water requirement increases day by day, and ultimately it leads to the scarcity of water, side by side pollution of water or deterioration of water. Basically, deterioration means what? The basic or natural quality of water varies. Means if we know water contains the nutrients as well as it contains the minerals. When the quantity of nutrients, minerals differs, or some unwanted material enters into that water, that is the water pollution. जैसा हमने सोचा था या जैसा प्योर वाटर होता है उसमें अगर कुछ चेंजेस आ गए, if that water is foul smelling, if that water is turbid, उसका कलर चेंज हो गया, उसका टेक्सचर चेंज हो गया, so हार्डनेस अगर उसमें है, तो all those are the factors related to the water pollution or deterioration of water quality. Next, what are the sources of this? Means what are the sources of water pollution? ओके, सो बेसिक सोर्सेस हम डिस्कस करेंगे, बहुत छोटे छोटे वाले जो है वो नहीं करेंगे. तो सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन मीन्स कॉजेज, किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है. सो फर्स्ट वन इज द डोमेस्टिक वेस्ट और सीवेज. डोमेस्टिक वेस्ट मीन्स द वेस्ट विच इज कलेक्टेड फ्रॉम आवर हाउसेस, हमारे घर से जाने वाला, किचन से जाने वाला टॉयलेट वेस्ट जो है वो पूरा आता है सीवेज में. सीवेज मीन्स ड्रेनेज फ्रॉम आवर हाउसेस. सो लिक्विड कंटेंट फ्रॉम आवर हाउसेस इज इंक्लूडेड in the sewage or domestic waste. So when this domestic waste collected from house to house or commercial complexes to the commercial complexes, it is collected in huge quantity. हमारे घर का हम सोचेंगे कि कम ही है, उससे क्या होने वाला है, but if that water sewage is not treated and it is dumped up into the river body or water body, जो भी आसपास में है शहर के, so it will create the very harmful effects on that aquatic ecosystem and further on human being. तो इफेक्ट्स हम बाद में देखेंगे, पहले हमारा डोमेस्टिक सीवेज क्या है वो समझ में आना चाहिए. Next one is the industrial waste. We are always blaming industry for every kind of pollution, but industries are quite responsible for the water pollution. So many industries such as paper industry and chrome plating industries required more and more water for the further processes. उनके steps होते हैं कुछ purification, जैसे sugar industry, it requires sugar crystal, एकदम white transparent sugar जो दिखती है, so एक black color के pulp के बाद में उसको इतना व्हाइट बनाने तक की जो प्रोसेस होती है, दैट इज द क्लीनिंग और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. इन दिस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस लॉट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, बिकॉज क्लीनिंग फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज,
every in paper and pulp industry also same process. So they required more and more water in every phase, and that's why that water, when they are using that water, they directly dump up into the nearby water body without any treatment. And those industrial waste contains lots of heavy metals, lots of chemicals, and it will affect more as compared to the sewage. It will affect more on the water body or human health. आफ्टर दैट द एग्रीकल्चरल वेस्ट डायरेक्ट हम उसको वाटर पोल्यूशन नहीं बोल सकते, बट व्हेन लॉट्स ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड इनटू द एग्रीकल्चरल फील्ड, रन ऑफ वाटर आफ्टर द precipitation, the runoff water contains that pesticide fertilizer with it, and it is directly drained into the river or directly drained into the nearby water body. दूसरा, that pesticides and chemicals enters into the leach by the soil. Leaching होता है when precipitation is there, बारिश होगी तब leaching होगा, and with that water it pollutes the ground water. ये ऐसा एकमात्र पोल्यूशन है जिसके ग्राउंड वाटर एज वेल एज सरफेस वाटर दोनों टाइप का पोल्यूशन होता है, ठीक है. Then next one is the thermal pollution. Thermal pollution means basically it is only related with the thermal power station. When thermal power stations are using huge amount of water, because it is basically located nearby the वाटर बॉडी. आप थर्मल पावर स्टेशन का कहीं और बना है और वाटर कहीं से और ले रहे हैं, डंप कहीं, ऐसा नहीं हो सकता. दे रिक्वायर मोर एंड मोर वाटर फॉर द रनिंग ऑफ टर्बाइंस एंड ऑल प्रोसेस, आपको पता होंगी. तो उसके लिए उनको वाटर चाहिए, एंड दैट हॉट वाटर, वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर बॉईल हो रहा है, एंड दैट हॉट वाटर दे आर डायरेक्टली डंप अप इन टू द नियर बाय वाटर बॉडी, एंड इट विल हैव मोर डेंजरस एक्वेटिक इफेक्ट्स. बिकॉज एक्वेटिक एनिमल्स, चाहे वो छोटी सी फिश हो या कोई भी एक्वेटिक एनिमल हो, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. थोड़ा सा भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन उनकी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो एक मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर में रहते हैं. कोई भी एक्वेटिक बॉडी हो, चाहे ओशन हो, चाहे रिवर हो, चाहे लेक हो, पॉन्ड हो, कोई भी हो, थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर जो है वो उनके बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. इफेक्ट्स में हम उसको डिटेल में देखेंगे. सो दोज आर द बेसिक सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब हमको पता है कि बीमारी किस वजह से हो रही. अब वो बीमारी के लक्षण क्या है और उससे क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो हम देखेंगे. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप हम लेते हैं, जैसे हमने सोर्सेस लिए. फर्स्ट वन इज द harmful effects of domestic waste. Means when domestic waste is dumped up into the river body or water body, it which kind of harmful effects it is having on the human being or other cattle or water body. So domestic sewage, as you know, domestic sewage means household waste जो होता है, that is domestic sewage, and it contains the organic matter. नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उसको बोल सकते हैं हम, या क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डोमेस्टिक सिवेज, एंड व्हेन इट इज डंप अप इनटू द रिवर, ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ दैट वाटर इंक्रीजेस. व्हेन ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीजेस, दैट मीन्स the aquatic plants are also increases, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वहाँ पे, है ना. तो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट, अल्गी है, इकोर्निया, टाइफा जो भी है, तो ये सारी ग्रासेस जो है वो बढ़ती जाएंगी लेक में, एंड यूट्रॉफिक लेक जो है, यूट्रॉफिकेशन रिवर जो हम बोलते हैं वो हो जाएगा. यूट्रॉफिकेशन मीन्स कवरिंग ऑफ होल वाटर बॉडी विद द ग्रीन लेयर. उसके ऊपर एक पूरी ग्रीन लेयर दिखती है, दैट इज द यूट्रॉफिकेशन. आपको पता होगा शांतिनगर लेक इन नागपुर सिटी, so that is the best example for eutrophication lake. इतनी beautiful बढ़िया lake है, but it has a foul smelling, it has a green color, and the water is very turbid and गंदा सा, बहुत ही foul smelling वाला. मतलब नियर बाय जो लोग रहते होंगे वो कितना सफर करते होंगे आप सोच सकते हो, because of the eutrophication or because of the dumping of domestic sewage. And second one, when the lake is covered up with the algae, the sunlight penetration drops. Means sunlight penetration कम होगा, means biological oxygen demand बढ़ेगी, the dissolved oxygen decrease होगा, and the fish and other aquatic animals will be harmful by that situation. If that some algae are toxic and they produce toxin in the water, उनकी concentration अगर बढ़ जाता है, they produce toxins. If that toxins enters to the aquatic water body, and it leads to the mortality of aquatic animals. ठीक है. Then because of the high pathogens organisms in that domestic sewage,
बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वायरसेस होते हैं, बिकॉज इट वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द हाउसेस. सो मेनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन दैट एक्वेटिक सीवेज. सो इट लीड्स टू द सेवरल काइंड ऑफ डिसीजेस इन ह्यूमैनिटी अगर उसको डायरेक्टली डंप अप करते हैं तो सो मेनी प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद दिस डोमेस्टिक effects. So many effects are related with the domestic sewage. Next one is the industrial waste. Harmful effects of industrial pollution. मैंने पहले ही भी बोला था कि उसमें बहुत ज़्यादा हेवी मेटल्स होते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स होता है. So according to that effects, basically all the heavy metals are responsible for the cancer, because it is called as a carcinogenic agent. So हम कैंसर को इन्विटेशन दे रहे हैं. If directly somebody or some city is utilizing directly that water, polluted water, तो वो कैंसर को इन्विटेशन देने जैसा होगा, because all the heavy metals are related with different kind of cancers. तो carcinogenic water हो जाएगा. And because of increase in salt concentration or chemical concentration in that water is hard water. Hard water ऐसा water होता है जिसको साबुन से हम घिसने के बाद में झाग नहीं आएगा, उसका हार्डनेस ज्यादा होता है. That water is not useful for the drinking purposes. That water cannot be used for the potable purposes. Means वो water body हमारी वेस्ट होगी. ठीक है. उसके बाद में बिकॉज ऑफ द केमिकल पोल्यूशन सेवरल एक्वेटिक एनिमल्स अफेक्टेड बाय दोज केमिकल्स. उनको हैबिट नहीं होता है, थोड़ा सा वो अपने नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं और उनमें हमने कुछ केमिकल डाल दिया तो वो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा. समटाइम्स सो मेनी केमिकल्स रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म द न्यू कंपाउंड एंड दैट विल बी मोर डेंजरस फॉर द एक्वेटिक लाइफ. Next one is the agricultural waste, and related to that harmful effects of agricultural waste. Harmful effects of agricultural waste. First one, excessive use of pesticides and fertilizer and chemical in the agricultural field. It leads to the infertility of soil. ये हमने agricultural portion में लिया हुआ है, जो हमने अदर चैप्टर में पढ़ा था. तो इट लीड्स टू द इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल. पहले मैंने बताया था इट लीड्स टू द एक्वेटिक ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. सेकेंडरी, all those chemicals are harmful for the aquatic life and it leads to the aquatic pollution. Next one is the thermal pollution and related to the effects of thermal pollution. Now thermal pollution ऐसे सोचने में हमको बिल्कुल ऐसा लगता है इसमें तो कोई केमिकल नहीं जा रहे, इसमें तो कोई पेस्टिसाइड नहीं जा रहे, पर थर्मल पोल्यूशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हम सोर्स बोल सकते हैं. बिकॉज मैंने पहले भी बोला आपको कि द एक्वेटिक एनिमल्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताती हूँ. टर्टल्स आर द वेरी प्रिमेटिव स्पीसीज ऑन द अर्थ. बहुत सारे स्पीसीज का इवोल्यूशन हो गया, पर टर्टल को हम सबसे पुरातन स्पीसीज में से एक बोलते हैं. एंड दे आर हैविंग द लॉन्ग लाइफ स्पैन. ओशन टर्टल आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. Female turtles migrate to the ocean, to the seashore for the laying of egg, and under the sand they laid their eggs. वहाँ पे उनका सेक्सुअल क्रोमोजोम नहीं होता है. जो एग्स है उसमें क्रोमोजोम्स नहीं होता है, सेक्स क्रोमोजोम नहीं होता है. मीन्स अंडे जो है वो हम उसको बोलते हैं स्टराइल है, उसमें मेल फीमेल काउंटिंग नहीं होता है. एंड 28-29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज द फेवरेबल टेम्परेचर्स फॉर द हैचिंग ऑफ दैट एग्स. एंड एट द टाइम ऑफ हैचिंग ऑफ एग, व्हेन दैट एग आर हैच ऑन द 28 and 29 डिग्री सेल्सियस, हाफ एग्स आर फीमेल एग्स एंड हाफ आर द मेल एग्स. जो बच्चे आएंगे वो हाफ फीमेल होंगे हाफ मेल होंगे. तो ये नेचर्स का फंडा है या फिनोमेनॉन है. बहुत ही ब्यूटीफुली नेचर ने हर चीज प्लान की हुई है, एनवायरमेंट ने प्लान की हुई है. बट वेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री और 3 डिग्री, आप सोचिए 2 या 3 डिग्री ही टेम्परेचर में बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ. ऑल द एग्स बिकम फीमेल. दे आर एक्सेप्ट द फीमेल क्रोमोसोम. वो फीमेल क्रोमोसोम ही लेंगे हायर टेम्परेचर में, एंड लोअर टेम्परेचर में वो लेंगे 28 से लोअर टेम्परेचर में मेल क्रोमोसोम. तो लोअर तो होगा नहीं, हायर होगा बिकॉज ऑफ द हॉट वाटर. सो व्हेन टेम्परेचर हाइज, व्हाट हैपेन, ऑल द हैच एग्स आर फीमेल. तो सोचिए फ्यूचर में उनकी जो प्रजाति है वो लुप्त हो जाएगी या वो इंडेंजर्ड हो जाएगी. वो स्पीसीज मिलेंगी ही नहीं, सारे फीमेल्स उसमें से आएंगे. तो थिंक अबाउट इट. ओनली 1 or 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैन चेंज द
whole life cycle of the turtle, can change the complete pattern of the turtle. So it is very, this is only a single example. So many species are there and they are having the same concept with the temperature variation. So many fishes are there, they hatch their egg and बिफोर मैच्योरिटी हो जाती है. इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द ओशन और एनी वाटर बॉडी, अगर टेम्परेचर एकदम से हाई हो गया तो जो स्पैन होता है वो एज हैच होने के लिए, एक से बच्चा बाहर आने के लिए जो टाइम लगता है वो बिफोर ही, मतलब पूरा मैच्योर भी नहीं हो पाता है वो ऑर्गेनिज्म, उसके पहले ही वो अंडे फूट के उसमें से बच्चे आएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी. तो ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है थर्मल पोल्यूशन. एंड माइग्रेशन ऑफ फिशेस आर ऑल्सो रिलेटेड विद द थर्मल पोल्यूशन, क्योंकि थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ तो वो माइग्रेशन कर देंगे, वहां पे रुकेंगे नहीं जो स्पीसीज है. तो दोज आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. आफ्टर दैट वन मोर एपिसोड इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, दैट इज मीना-माता डिसीज. मीना-माता डिसीज, इट साउंड्स लाइक कुछ माता डिसीज बट इट इज नॉट लाइक दैट. मीना-माता इज द place, name of place. In Minamata, this disease or this episode occurs before 40 years. आप सोचिए 40 साल हो गए उसको करीब करीब. So Minamata एक शांत सा अपना काम से काम रखने वाला एक शहर हम उसको बोल सकते हैं. And Minamata is having one plastic industry, and that plastic industry is using mercury for their phenyl chloride or production of phenyl chloride and other processes. And they are dumping that water, wastewater, in the nearby water body, and that Minamata area utilizes that water directly. सो मर्क्यूरी इज इन वेरी फ्यू कॉन्सेंट्रेशन. ऐसा नहीं कि मर्क्यूरी के बोरे भर के डाल दिया, ऐसा नहीं था, बहुत कम क्वांटिटी में था. एंड मर्क्यूरी कैन नॉट बी एंटर्स इनटू द ह्यूमन चेन और इट कैन नॉट बी एंटर्स इनटू द फूड चेन. बट व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम, सम बैक्टीरिया in that water body utilize that mercury or consume that mercury and convert it into the organic form. And again that organic content enters to the fish body, and those fish are consumed by this Minamata people, and so many problems they are facing because of the mercury concentration. Nervous system पे काम करता है mercury, जो है डायरेक्ट आपकी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है. नर्वस सिस्टम आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल. सो नमनेस इन द हैंड, द डिफनेस, बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ मॉर्टेलिटी भी वहाँ पे हुई, और धीरे धीरे ये पता चला कि क्यों होने लगा, और सब को होने लगा इसीलिए. सो इट इज एन स्लो पॉइजन. धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन जो है वो सोसाइटी में आने लगा था. तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी शुड गो थ्रू द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन. ठीक है. नाउ कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, सो मेनी पॉइंट्स आर गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, बट अकॉर्डिंग टू मी कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन इज माई प्राइम ड्यूटी. वेन आई थिंक अबाउट इट कि ये मेरा काम है, मुझे करना है, सो डेफिनेटली आई कैन डू इट. हम बहुत बार सोचते हैं कि गवर्नमेंट हैज सेवरल प्लान्स टू कंजर्वेट द नेचुरल वाटर बॉडीज एंड वाटर पोल्यूशन कंटेमिनेशन कंट्रोल एंड एवरीथिंग. But what are our duties related to that? So first of all, the laws and regulations should be very strict related with water pollution. Ban on the dumping of direct material from the industries. It should be treated before dumping in any water body. They can reuse that material or reuse that water for the gardening purposes, for the construction purposes. तो इस तरह से ये compulsory होना चाहिए. Next one is the some advanced technology should be developed, so minimum use of water occurs into the industry. कुछ थोड़े से इसमें हो जाए ऐसा वाला कुछ करना पड़ेगा. And last but not least, that is our prime duty to conservate our water bodies or conservate our water bodies. निर्माल्य फेंकने जाते हैं ना, मम्मा ने दिया हुआ या घर में कुछ पूजा हुई तो डंप अप करके आते हैं, तो इट शुड बी अवॉइडेड. उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रिक्ट बैन एंड रेगुलेशंस होने चाहिए कि आपने कुछ भी नहीं डालना चाहिए. रिलेटेड टू दैट आई हैव पोस्टेड वन वीडियो, दैट इज गणेश विसर्जन इन माई यूट्यूब चैनल. प्लीज look at the video, and this is a very simple concept कि मेरे घर का चीज मेरे घर में ही रहेगा. So ऐसे छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं. निर्माल्य से रिलेट आई हैव पोस्टेड द वीडियो ऑफ कंपोस्टिंग, वो भी आपको देखना है और अपने घर में इम्प्लीमेंट करना है. एंड द लास्ट वन इज द
हाइलाइट्स ऑफ इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 2002 में हमारा आया था ये पॉलिसी, इंडियन नेशनल वाटर पॉलिसी. सो मेनी हाइलाइट्स आर देयर. फर्स्ट वन इज अ प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. जहां जहां नहीं पहुंच सकते वहां सब जगह पे पहुंच के हमको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है. आफ्टर दैट द लिमिट एंड रेगुलेशन ऑन ग्राउंड वाटर यूज. ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर फॉर द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. मीन्स एवरीबडी इज डिगिंग द वेल इन personal houses and they are utilizing the groundwater more and more, so some limitation should be there. And water monitoring means surface water monitoring as well as groundwater monitoring every year. check कीजिए उसकी क्वालिटी कैसी है. those are the governmental concept. so check करेंगे कि उसकी कैसी क्वालिटी है, उसमें क्या स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं और किस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. so all those points related with the water contamination, this is video totally based on the water contamination. If you have any doubt, please comment in the comment box. If you face some problem, please go through the textbook. Your concept will be clear. And like the channel, subscribe the channel, and thank you for watching.